हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी सेशन के साथ। और केस स्टडी नंबर 34 जिसे हम आज करने वाले हैं, सिंपल सी केस स्टडी है। ठीक है, तो फटाफट से इसको ख़त्म कर लेते हैं। क्या है, एक कंपनी है जिसका नाम है डीबीएस, दैट इज डिलाइट बिजनेस सॉल्यूशंस, वाज एस्टेब्लिश बाय मिस्टर मदन शुक्ला अराउंड 20 years बैक। डीबीएस was constituted initially in form of proprietorship concern and was later converted into private limited company in which Mr. Shukla and Mrs. Mamta Shukla, wife of Mr. Madan Shukla, मदन शुक्ला, became its members। ठीक है, कंपनी इज़ फेमस फॉर इट्स हाई परफॉर्मेंस डेस्कटॉप बेस्ड पर्सनल computers, but the information technology industry developed new techniques over the period, resultantly prices start declining and the big fat profits which earlier DBS used to earn start eroding। अब कंपटीशन बढ़ गया, उसकी वजह से उनका जो है प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो गया DBS का। DBS was primarily dealing in the computers, spares and accessories there too, but due to change in this situation, DBS entered into trading and repairs of laptops and started offering maintenance service to small and medium enterprises with respect to IT equipment and infrastructure in form of annual maintenance contract at rupees 999 per equipment and per year with a plan called AMC at 999। AMC 999 made DPS famous among corporate houses since the price charge was pretty much less than what others were charging and was below the cost इनकर्ड बाय द डीलर। मतलब प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहा था कौन, डीबीएस। ठीक है, प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहा था कौन, डीबीएस। इन द शॉर्ट स्पेन डीबीएस स्टार्टेड गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम लार्जर क्लाइंट्स एंड इट बिकेम फेमस फॉर इट्स एएमसी डील्स। आफ्टर फ्यू मंथ्स व्हेन डीबीएस acquired significant market share, the price of AMC was raised from 999 to 1499, which was टेकन एज अनफेयर मूव बाय द। अब उसने क्या किया, जैसे ही उसको उसने अच्छा खासा मार्केट शेयर पा लिया, ठीक है, तो डोमिनेंट पोजीशन में आ गया, तो उसके बाद उसने क्या किया, अपने प्राइस को अनफेयर प्राइस मतलब चेंज कह लो या कुछ भी डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग चेंज कह लो कि 999 से 1499 पे आ गया, जो लोगों को भी पसंद नहीं आया, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी पसंद नहीं आया। एज इट अपीयर्स देम दैट आफ्टर एक्वायरिंग द सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द मार्केट व्हेन द अदर प्लेयर्स वर वाइप्ड आउट, सच अ मूव वाज मेड बाय डीबीएस। मतलब ऐसा उनको लग रहा है कि यार ये तो अब ऐंठ में आ गया, अकड़ में आ गया, अब ये जो है हमसे अब ज़्यादा पैसे ले रहा है, जब एक बार उसका मार्केट शेयर अच्छा हो गया तो। ठीक है, तो आगे क्या हुआ देखते हैं। इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई डीबीएस एंटर्स इनटू द टू अनदर सेक्टर्स, वन बीइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज एंड इट इन विच इट ऑफर्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर रेंजिंग्स फ्रॉम अकाउंटिंग पैकेजेस टू ह्यूमन रिसोर्स सॉल्यूशंस एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम उसने क्या रखा, डीबीएस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एंड अदर बीइंग द रियल एस्टेट इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम उसने रखा डीबीएस रियल्टर्स एंड डेवलपर्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। Ministry of Urban Local Bodies in one of its press conference gave hint about the government's intention to remove the prohibition on foreign direct investment, that is FDI, in real estate sectors. Various trade groups through trade associations reached to government with their concerns relating to the adverse effect of such policy on domestic industry and competition and requested not to launch FDI policy in real estate since elections were due in major states in a year or two to come. Hence, central government sent the matter to the reference of the Competition Commission to assess the validity of the concerns shown by the different trade groups, and in order to give assurance to such trade groups that anything which is detrimental to the interest will not to be turned up. Competition Commission gave its opinion to the government regarding the prospective effect on competition, but central government did not consider such advice or opinion of Competition Commission and said such change in FDI policy was essential part of the government plan। तो आपको पता ही होगा सेक्शन नंबर 49 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिशन कमीशन जो हमारी होती है, एडवोकेसी होती है, तो वो उनसे क्या होता है, गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी या चेंजेस लाने वाली होती है जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन पे इंपैक्ट पड़ने वाला होता है, तो उनसे भी उनकी राय मांगी जाती है और वो लोग अपनी राय जो है देते हैं। तो उस राय को एक्सेप्ट करना, उस एडवाइस को एक्सेप्ट करना या ना करना, वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि इन्होंने अपनी राय दी लेकिन गवर्नमेंट ने उसको नहीं माना। बीपीओ बिजनेस ऑफ डीबीएस वाज नॉट डूइंग वेल, ओके, हेंस मिस्टर शुक्ला डिसाइडेड टू वाइंड अप द बीपीओ बिजनेस बट वाज कंसर्न अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ द ह्यूज इन्वेस्टमेंट डन इन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। द बिल्डिंग वाज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट इट कुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी and also was situated in the industrial area
2. Mr. Shukla consulted his legal advisor for identifying the DBSC's eligibility and moving the application. मतलब उसका जो BPO का काम है वो अच्छे से नहीं चल रहा है कंसल्टेंसी वाला, तो वो ये चाह रहा है कि यार या तो उसको बेच देते हैं, लेकिन उसने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसने ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी ले रखी है जिसको वो कन्वर्ट करके रेजिडेंशियल यूनिट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी बात इसमें ये बोला कि मिस्टर शुक्ला अब ये अपने लीगल एडवाइजर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं एप्लीकेशन फाइल कर देता हूँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास इनिशिएशन ऑफ CIRP के लिए सेक्शन नंबर 10 ऑफ IBC के तहत, ठीक है भाई। फर्स्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑफ DBS वॉज बिग हिट, लेकिन जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट था वो उसका अच्छा खासा हिट हो गया है बिकॉज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक लिस्ट 100 सिटीज़ की जिसको वो स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं और DBS ने जो अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो उनमें से एक सिटीज़ में किया हुआ है, ठीक है। ऑल द अपार्टमेंट्स वर बुक्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ ओपनिंग ऑफ द बुकिंग्स आफ्टर द एडवर्टीजमेंट। कॉस्ट ऑफ ईच अपार्टमेंट वॉज 70 lakhs, ठीक है। एडवांस ऑफ 10 lakhs वॉज कलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द अलॉटीज। बताओ इसने क्या किया, रेरा में हमने क्या बोला हुआ है 10% के हिसाब 10% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो 7 lakhs से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इसने 10 लाख ले लिया, तो यहाँ पर कॉन्ट्रवेंशन है रेरा का, ठीक है। फ्रॉम ईच ऑफ द अलॉटीज एंड अलॉटमेंट लेटर्स वर इशूड इन देयर नेम्स। बताओ अलॉटमेंट लेटर इशू किया है। अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ फ्यू अपार्टमेंट्स वर स्टिल पेंडिंग टू बी एंटर्ड। अब यहाँ पर अग्रीमेंट भी नहीं कर रखा उसने, तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी स्टार्टिंग में पैसा लिया जाता है, जब भी पैसा लिया जाता है एडवांस लिया जाता है, उसके साथ अग्रीमेंट फॉर सेल होना चाहिए जो हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं है, जिसके रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉन्ट्रवेंशन हमें नजर आए, एक तो 10% एडवांस वाला उससे ज़्यादा ले रखा है, दूसरा रजिस्ट्रेशन जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला वेंट टू न्यूजीलैंड फॉर हॉलीडेज। देयर दे मेट मिस्टर बिनी, कजन ऑफ मिसेस शुक्ला हु गॉट सेटल्ड इन Christchurch since 1990, although an Indian origin and is in the business of manufacturing and trading of food and beverages. Presently, the business of the Mr. Binay is flourishing, and he planned to open a branch office at Mumbai, India. Branch office at India, for which he asked Mr. Shukla to help him in identifying suitable property. Mr. and Mrs. Shukla converted the Indian rupees to of US dollar. एक मिनट ओके, यहाँ थे ना। मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला कन्वर्टेड इंडियन रुपीज़ वर्थ रुपीज़ $5 lakh थ्रू ऑथराइज डीलर फॉर द फॉरेन टूर एंड दे हैड स्पेंड द अमाउंट इक्वल टू $4,50,000। तो मतलब उसने $5 लाख में कन्वर्ट किया, जिसमें से उन्होंने $4.5 लाख जो है खर्च कर दिए, ठीक है। तो $50,000 उनके पास पड़े हुए हैं जिन्हें उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा जैसे ही वो इंडिया आते हैं। कितने दिन के अंदर 180 डेज़ के अंदर, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला दोनों के दोनों पर्सनल रेजिडेंट इंडिया हैं, ठीक है। तो ये थे फेमा के कुछ प्रोविजंस। मिस्टर शुक्ला टोल्ड मिस्टर बिनी अबाउट हिज बिल्डिंग इन BPO business, for which Mr. Binney agreed, and the same building was sold to him after making certain changes in the structure of the building for 3 crores. 1 crore was repatriated into India, and the sale proceeds were deposited into the personal account of Mrs. Shukla and her mother equally, ठीक है। Remaining 2 crores were not repatriated into India, and the same was shown as loan and advance given in the books of accounts of DBS। आप सबको पता होगा FEMA के प्रोविजन हमें साफ साफ कहते हैं कि आपको रिपेट्रिएट करके पैसा इंडिया में लाना चाहिए, ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से रिपेट्रिएशन का प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे कि आप रिपेट्रिएशन ना करें, ठीक है। इसके बाद विद ₹1 crore विच वॉज डिपॉजिटेड इन टू मिसेस शुक्लास एंड हर मदर्स अकाउंट रिस्पेक्टिवली फ्रॉम दैट अ प्लॉट वॉज परचेज एंड वॉज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मिस रिंकी, डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला। मिस रिंकी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टू बी प्रेजेंट इन हिज ऑफिस एंड ही हिमसेल्फ इनिशिएटेड द इंक्वायरी, ओके। Based upon representation made by Miss Rinki and documents furnished, she was held बेनामीदार। ऑब्वियसली वो तो बेनामीदार रहेगी क्योंकि उनकी बेटी के नाम पे जो उन्होंने खरीदा है, ठीक है, तो वो गलत है। उसके अलावा क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए, इंटेंशन देखो ना, बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। बेस्ड अपॉन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मिसेस रिंके एंड डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड, शी वाज हेल्ड बेनामीदार एंड पेनल्टी वाज इम्पोज्ड ऑन हर। शी विश टू फाइल एन अपील अगेंस्ट, अब उसके अगेंस्ट में वो फाइल करना चाहती है अपील, ठीक है। अब MCQs देखते हैं क्या है। सबसे पहला, इस चार्जिंग ₹999 फॉर प्लान AMC@999 कैन बी कंसिडर्ड प्रीडेटरी प्राइसिंग। येस, बिकॉज क्योंकि कॉस्ट से कम बेच रहा है तो ऑब्वियसली प्रीडेटरी प्राइस है, उसकी डेफिनेशन वही बोली हुई है, ठीक है। आगे बोलते हैं क्या कहता है। DBSRD इज in contravention of the provisions of Real Estate Regulation and Development Act 2016 with respect to advance booking of 10%, जो लिया गया वो 10% से ज़्यादा ले लिया गया। एडवांस और बुकिंग फीस वर कलेक्टेड विदाउट एंटरिंग इनटू रिटर्न एग्रीमेंट फॉर सेल, बिल्कुल सही बात है। इन केस कुछ एग्रीमेंट ऑफ सेल जो थे वो हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए भी पेंडिंग थे, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो हैं सही हैं, तो ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट। तो सारे के सारे तीनों पॉइंट जो थे उसमें कॉन्ट्रवेंशन हमें दिख रही है।
रेरा के हिसाब से। इफ़ DBSCS furnish an application for initiation of insolvency resolution process, then adjudicating authority shall within a period of dash days from the date of receipt of application either accept the application or reject the application। 14 डेज के अंदर अंदर या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, बट इन केस ऑफ रिजेक्शन अगर कोई डिफेक्ट ठीक करवाना है तो 7 डेज के अंदर अंदर उसे ठीक करना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, कहाँ मिलेगा इसका आंसर आपको? सेक्शन नंबर 10 ऑफ IBC 2016 में। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is true regarding validity of inquiry against Miss Rinki regarding the Benami transaction by DCIT? बताओ, एक बात बताओ, जब भी इंक्वायरी करी जाती है वो किसके अप्रूवल के बाद करी जाती है? अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद करी जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, कहता है इसके अंदर DCIT के बारे में, तो DCIT कैन कंडक्ट इंक्वायरी आफ्टर द अप्रूवल विद प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी ओनली। तो अगर आप पेज नंबर 6.2425 के पास देखेंगे तो ये वाली बात लिखी हुई है बुक में, ठीक है, कि अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल लेने के बाद ही इंक्वायरी करी जाएगी, ठीक है, DCIT के द्वारा। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेज शुक्ला शेल सरेंडर द अनयूज अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज, क्योंकि वो पर्सन ऐसे इंडिया थे तो फेमा के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आपको पता ही होगा कि 180 डेज के अंदर अंदर सरेंडर करने होते हैं पैसे। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। सिक्स क्या कहता है? द लीगल एडवाइजर वाइल एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी ऑफ DBSCS फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ऑल्सो एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर्स सर्टेन केसेस वेयर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कांट बी इनिशिएटेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट प्लीज एक्सप्लेन। कहता है कहाँ कहाँ एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती, कब कब एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती। पर्सन हु कांट मूव एप्लीकेशन टू द इंसॉल्वेंसी, तो आप सबको पता होगा सेक्शन नंबर 11 IBC का, जो हमें पेज नंबर 3.28 पे, पेज नंबर 3.28 पे आप जाओगे तो वहाँ दिख जाएगा। सेक्शन नंबर 11 साफ साफ कहता है कि जब ऑलरेडी आपका CIRP चल रहा है तब आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। उसके अलावा अगर आपका अभी CIRP कंप्लीट हुए 12 महीने हुए हैं तब आप नहीं कर सकते। उसके अलावा अभी जो 12 महीने हुए हैं लेकिन आप प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो रेजोल्यूशन प्लान था उसको, तो तब आप CRP नहीं स्टार्ट करवा सकते, और लिक्विडेशन का अगर ऑर्डर दे दिया गया है तब CRP स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके अलावा दूसरा, व्हाट शैल बी द इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो कॉर्पोरेट डेटर को क्या एप्लीकेशन देनी होती है? तो अगर आप सेक्शन नंबर 10 पढ़ते हो IBC का, जो आपको पेज नंबर 3.27 पे मिल जाएगा, तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सबसे पहले तो कॉर्पोरेट डेटर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को उसे अपॉइंट करना है वो लेके जाना पड़ेगा। उसके अलावा SR जो उसने पास किया है वो लेके जाना पड़ेगा, या फिर 3/4 ऑफ द पार्टनर नंबर ऑफ पार्टनर्स का अप्रूवल लेके जाना पड़ेगा, जो भी उसके पास होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको अपने साथ लेके जानी पड़ेंगी। 7th का फर्स्ट क्या कहता है? कैन अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बाय इमल प्रॉपर्टी? बिल्कुल इमल प्रॉपर्टी बाय कर सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द फेमा। यस, इमल प्रॉपर्टी बाय करी जा सकती है, पेज नंबर 5.32 पे आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो मैंने इसकी एक स्मॉल वीडियो डाली हुई है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ फेमा की, वहाँ जाके आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। मैंने चार्ट के फॉर्म में उसको समझाया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी समझ सकते हैं। यस, वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है, लेकिन बस प्रोवाइडेड यही है कि जो फंड आना चाहिए वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से रिसीव होना चाहिए, या फिर उसका जो नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट मेंटेन कर रखा है उसने RBI के हिसाब से यहाँ पर, उसके हिसाब से उसको वहाँ से पेमेंट देनी होगी। कोई भी पेमेंट वो जो है करेंसी नोट से या या ट्रैवलर चेक से या उस फॉर्म में नहीं देगा जो अलाउड नहीं कर रखा, तो उसके हिसाब से अगर पैसे देता है और तो प्रॉपर्टी को पर्सन जो होता है हमारा ऑफ इंडियन ओरिजिन खरीद सकता है प्रॉपर्टी। उसके अलावा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ BPO बिल्डिंग्स बिजनेस बिल्डिंग वाज नॉट फुल्ली रिकवर्ड एंड रिपेट्रिएटेड बाय मिस्टर शुक्ला ऑन बिहाफ ऑफ DBSCS। एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ DBSCS अंडर द प्रोविजंस ऑफ फेमा। तो आप सबको पता है फेमा के तहत जो होते हैं वो पैसे वापस लेके आने पड़ते हैं। अगर आप पेज नंबर 5.64 पे देखते हैं प्रोविजंस फेमा के, और पेज नंबर 5.65 पे जाते हैं तो ये सारे रिपेट्रिएशन के प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि पैसे को इंडिया में लेके आना होगा, सारे के सारे रीजनेबल स्टेप्स लेने होंगे रियलाइज करने के लिए और रिपेट्रिएट करने के लिए इंडिया में पैसे, ठीक है। कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना किसी भी बंदे को कि इंडिया में वो पैसे ना लेके आए। और इंडिया में पैसे लाने के बाद रिपेट्रिएशन का मतलब होता है या तो ऑथराइज डीलर को दे देना, या फिर अपनी कोई लायबिलिटी अगर फॉरेन एक्सचेंज में है तो उसको डिस्चार्ज कर देना, या फिर अपने नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में पैसे को रख लेना, ठीक है। लेकिन लेके जरूर आना है आपको, और किसी भी हालत में लेके जरूर आना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 90 डेज के अंदर अंदर वैसे तो लाना होता है और सरेंडर कर देने होते हैं, ठीक है। तो वही तो यहाँ पर साफ साफ यही आपका जवाब हो जाएगा कि DBSCS को जो है वो रियलाइज़ करना है और रिपेट्रिएट करना है, और उसके बाद कन्वर्ट करके ऑथराइज डीलर को 90 डेज के अंदर अंदर दे देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 का फर्स्ट क्या कहता है? वेदर द इंक्रीज ऑफ द प्राइजेस बाय DBS फॉर AMC कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्रॉम 999 टू 1499 कैन बी कंसिडर्ड एज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। यस, सेक्शन नंबर 4 में अगर आप जाते हो ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट, जो आपको तो साफ साफ दिख जाएगा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, क्योंकि अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग जो है वो करी गई है, क्योंकि वो डोमिनेंट पोजीशन में तो आ गया है, क्योंकि एक स्ट्रेंथ इंजॉय करी जा रही है उस एंटरप्राइज के द्वारा जो कि उसके फेवर में है, ठीक है। तो डोमिनेंट पोजीशन में तो आ गया है, और अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग जब कोई बंदा अपनी डोमिनेंट पोजीशन में आके करता है तो उसको अब्यूज ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। उसके अलावा सेकंड
8 का सेकंड क्या कहता है, रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन इज वाइटल इन ऑर्डर टू एंश्योर हेल्थी कंपटीशन इन मार्केट, इन द प्रेजेंट केस डिटरमाइन द लीगल वैलिडिटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन इन टेकिंग द मेकिंग रेफरेंस एंड रिफ्यूजल टू कंसिडर द ओपिनियन ऑफ द कंपटीशन कमीशन। तो आप सबको पता होगा सेक्शन नंबर 49 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002, ऊपर भी मैंने जिक्र किया था, पेज नंबर 1.54 पे आपको मिल जाएगा, जहां पर साफ साफ 60 डेज के अंदर अंदर जो होते हैं हमारा उसको जवाब देना होता है, गवर्नमेंट को बताना होता है। गवर्नमेंट को मतलब सीधा सीधा ये है, कमीशन को ना गवर्नमेंट को राय देनी होती है, अपनी एडवाइस देनी होती है 60 डेज के अंदर अंदर, जब से गवर्नमेंट ने मांगा है ओपिनियन। तो उसके बाद गवर्नमेंट की मर्जी होती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, गवर्नमेंट की मर्जी है, उसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करे, नहीं करना है तो नहीं करेगा। दैट्स इट, यहाँ पर हमारी ये केस स्टडी कंप्लीट होती है। मिलेंगे किसी और नई केस स्टडी के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, शबा खैर एंड ऑल द बेस्ट।